Hello students, welcome to the next lecture of GOC. This entire lecture of GOC will be based on IUPAC of different organic compounds with different functional groups and also those organic compounds which have more than one functional groups. For that, I have already written something on the board which is very important for the nomenclature part. That is the order of priority of different functional groups plus those functional groups which don't have a perfect IUPAC name which always act as a substituent. So how to use this entire data and what is the lecture is all about. Let's take an example and let's try to understand. Okay, so I'll take a very simple example from your 10th standard of a molecule HO CH2 CH3. Now this molecule, if you remember, this molecule is called as ethanol, okay, where this ethan comes from the root word of the 2 carbon atom ethane. Then you replace E of ethane with all of alcohol, a vowel. देखो O से start हो रहा है, आपने एक vowel निकाला, एक vowel introduce किया. So you replace E and you replace E with a all, it becomes ethanol. So now this all becomes suffix for the functional group alcohol, the OH. तो उसका ये suffix part हो गया, मतलब अब ये compound ROH है, alcohol है. Okay, now OH is your main functional group here. This functional group have a suffix name all. क्लियर है. सो आपने क्या किया, जो पेरेंट चेन था 2 कार्बन का, दैट वाज ईथेन, यू रिप्लेस ई ऑफ ईथेन विथ OL all, which is a suffix for a functional group alcohol. So this suffix is nothing but for a functional group of alcohol, that is a OH group. उसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. अब नाउ सपोज let's talk about this acid CH3 COOH. Suppose if I take an acid, this acid common name is acetic acid, but the IUPAC name of this acid is ethanoic acid. See properly. Now this is a carboxylic acid represented by RCOOH, where R is the alkyl group. This is the general formula. But the name of this acid is ethanoic acid. So this ethan word is coming from a root word of 2 carbon atom ethane. Then you replace this alphabet ethane with a word OIC acid. This OIC acid signifies presence of COH functional group. So this OIC acid becomes suffix for COH functional group. So now this molecule will be called as ethanoic acid. देखो आपने एक vowel निकाला, but एक चीज notice करना, you remove a vowel and when you introduce a word it also start with a vowel. तो 2 vowel साथ में नहीं हो सकते, ये हमेशा याद रखने का, और बिना vowel के name नहीं होता. Okay, so now your suffix is OIC acid. So this OIC acid becomes a suffix for the functional group COH. So every organic compound has 2 names in it, a prefix and a suffix. Suffix represent presence of functional group. So every functional group has a different suffix. Okay, पहले ये दिमाग में डाल लो. ठीक है, तो suffix represents the functional group and different functional groups have a different suffix in them. Normally suffix हम लोग root word में कैसा introduce करते हैं, by removing a vowel E and introducing that suffix which also mostly it starts with a vowel. Like alcohol में all हो गया, OIC acid में, alcoholic acid में OIC acid हो गया, and like that. Okay, तो ये तो मैंने आपको एक simple example दिया था जहाँ पर हम लोगों ने एक alkyl group लिया और साथ में एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया. अब सपोज ये दोनों फंक्शनल ग्रुप साथ में, COH एंड OH आर टुगेदर, दोनों साथ में. तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं समझाने के लिए. CH2OH CH2COOH. Now there are two functional group.
बट रूट नेम में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को ही आप रूट नेम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब ई रिप्लेस करके आप ऑल डाल सकते हो या ई रिप्लेस करके OIC एसिड डाल सकते हो। मतलब या तो ये मॉलिक्यूल पूरा एसिड है या तो ये मॉलिक्यूल पूरा अल्कोहल है। तो अब कौन डिसाइड करेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज हैविंग हायर प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू OH. So now this entire part will become the parent, the owner of the chain. Why the owner of the chain? क्योंकि उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब ये OH क्या करेगा? Now this OH act as substituent, a branch, substituent. अब जब OH substituent की तरह काम करता है तब आप उसके लिए सफिक्स यूज नहीं करते, तब आप उसके लिए यूज करते हो प्रीफिक्स। एंड प्रीफिक्स फॉर OH इज हाइड्रोऑक्सी। सो इफ दिस इज योर पेरेंट चेन एंड COH इज द रूलिंग फंक्शनल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रायोरिटी ऑर्डर, तो ये पूरा एसिड ही होगा। OH कौन बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और जब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा तब आप उसको सफिक्स नेम नहीं, उसका प्रीफिक्स यूज करोगे। उसका प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 1 2 3 थर्ड पोजीशन ऑफ चेन पे प्रेजेंट है, तो हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का अल्केन इज प्रोपेन, जैसा आपने यहां किया था इथेन, तो प्रोपेन। ई रिप्लेस करके मैं क्या लिख रहा हूं? OIC एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपैनोइक एसिड। ओके, तो अब बराबर देखो, योर OH वॉज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो आपने पूरा पेरेंट अल्कोहल ही डिसाइड किया, यू रिप्लेस इथेन ऑफ E by ऑल। बट योर with respect to priority order, carboxylic acid becomes the main functional group, okay, become the owner of the chain, the parent chain. So parent chain will be written in end. तो parent chain के लिए आप मेन जो फंक्शन ग्रुप है उसका आप क्या यूज कर रहे हो? सफिक्स यूज कर रहे हो। और जो हाइड्रोक्सी था वो मेन चेन, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं, वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप उसका क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्सी का प्रीफिक्स। ठीक है, और यहां पर आप हाइड्रोक्सी का क्या यूज कर रहे थे? सफिक्स, क्योंकि चेन उसका था। तो जिसका चेन होगा प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, वी यूज दैट सफिक्स नेम इन द एंड द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन बाय रिप्लेसिंग E and replacing E and introducing with another word, mostly start with a vowel. But if that functional group, अगर वो functional group प्रायोरिटी ऑर्डर में कम हुआ, तो अब आप उसका प्रीफिक्स नेम लिखोगे, सफिक्स नेम नहीं लिखोगे, क्योंकि वो चेन उसका नहीं है, अब वो चेन का सिर्फ एक हिस्सा है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द मेन चेन कार्बन एटम, लॉन्ग चेन कार्बन एटम पे वो कहीं ना कहीं अटैच रहेगा, उसका पोजीशन लिखो, आप प्रीफिक्स नेम लिखोगे। सो एवरी फंक्शनल ग्रुप हैज 2 नेम्स, सफिक्स नेम व्हेन इट बिकम्स द लॉर्ड ऑफ द चेन, द पेरेंट चेन, प्रीफिक्स नेम व्हेन इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसा COH अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको कार्बोऑक्सी बोलेंगे, लेकिन अगर वो पेरेंट है तो OIC एसिड से इट विल बी कॉल्ड एज अल्केनोइक एसिड। आपको OIC एसिड लिखना पड़ेगा, तो आप उसका सफिक्स नेम यूज करेंगे। ओके, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रीफिक्स नेम एंड द सफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम कब यूज करने का? व्हेन इट एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। सफिक्स नेम कब यूज करने का? बाय रिप्लेसिंग E when it is acting as a parent chain. तो you should be aware of both the things about prefix and suffix. तो अभी हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में वही डिस्कस करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डिफरेंट प्रीफिक्स नेम एंड सफिक्स नेम। ओके, जब तक ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो प्लीज। Okay guys, let's start with the first organic compound. The first organic compound today we are going to discuss is haloalkanes as well as haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. We know that haloalkanes and haloarenes, they are represented by the general formula RX, or they are represented as ARX if they are haloarenes, aromatic compounds में अगर याद आया तो। Now the common name of haloarenes, अभी कोई भी कंपाउंड के 2 नेम होते हैं। कॉमन नेम होता है
IUPAC होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, RX एक ऐसा कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप एक हैलोजन है, और हैलोजन का एक खुद का IUPAC सिस्टम के हिसाब से दे हैव हैलो अल्केन एज अ नेम, बट उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से इफ दे प्रेजेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दे विल ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, अगर किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ में आते हैं तो स्लोली समझते हैं। कॉमन नेम एंड IUPAC, हैलो अल्केन्स का कॉमन नेम होता है अल्काइल हलाइड्स, जिसके लिए आपको अल्काइल ग्रुप्स आने चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। यू जस्ट राइट डाउन अल्काइल हलाइड फॉर कॉमन नेम। IUPAC दे आर नेम्ड एज राइट डाउन योर halo alkanes, and if the halogen is having position, you write down the position of halogen with respect to lowest sum rule. okay? अब ज़रा बराबर से हम लोग देखेंगे, या लोएस्ट स्ट्रोक इन रूल के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH3Cl, तो अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम जो नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछते, इट इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, a common name, it is named as alkyl halide. So which alkyl group is this? This is methyl group. So we write down the name as methyl. अब Cl है तो Cl के लिए halide क्या होगा? क्लोराइड। बट अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है तो IUPAC of this compound will be C properly. It is named as haloalkane, मतलब क्लोरोमीथेन। तो क्लोरो इज दी हैलो, एंड एक कार्बन का अल्केन कौन सा होता है सीखने का, पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन, ओनली वन कार्बन, तो वन कार्बन का अल्केन इज मीथेन। सो दे आर नेम्ड एज, इट इज नेम्ड एज क्लोरो मीथेन। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2Br। नाउ इन दिस एग्जाम्पल 3 कार्बन का चेन है, प्रोपाइल, तो मुझे कॉमन नेम भी लिखना है और इसका IUPAC भी लिखना है। तो कैसा नेम करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम इट इज नेम्ड एज अल्काइल हलाइड। तो 3 कार्बन में 2 ही अल्काइल होते हैं, N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। N प्रोपाइल कब होगा? व्हेन इट इज अ स्ट्रेट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे अटैचमेंट होगा, और आइसोप्रोपाइल कब होगा? जब सेकेंड कार्बन पे अटैचमेंट होगा, सेकेंडरी कार्बन, बट इट इज नॉट, द ब्रोमीन इज नॉट अटैच टू द सेकेंड कार्बन, अटैच टू फर्स्ट कार्बन, तो ये N प्रोपाइल ग्रुप हो गया। सो नाउ इट इज नेम्ड एज N प्रोपाइल और प्रोपाइल अल्काइल हलाइड। ब्रोमीन का हलाइड क्या होता है? ब्रोमाइड। अच्छा, मुझे IUPAC लिखना है, तो अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 3 कार्बन का आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबर द कार्बन ऑफ कार्बन चेन इन सच अ मैनर दैट हैलोजन शुड गेट लीस्ट, ऑब्वियसली इसको लीस्ट मिलना चाहिए। फर्स्ट पे ब्रोमीन है तो मुझे उसका पोजीशन लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ नंबर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ कोई पोजीशन ही नहीं है। 2 कार्बन में भी कोई पोजीशन नहीं होता, बट 3 कार्बन में 2 पोजीशन बन सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन एंड सेकेंड पोजीशन। सो जहाँ पर भी पोजीशन मेंशन करने का ज़रूरत है वहाँ करना चाहिए, स्पेशली नॉर्मली फ्रॉम 3 कार्बन और 4 कार्बन, इन सम केसेस 3 कार्बन। मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स 3 कार्बन के बाद से नंबरिंग स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट पोजीशन पे भी ब्रोमीन हो सकता है, सेकेंड पे भी हो सकता है। तो 1 ब्रोमो, सो आई राइट डाउन फर्स्ट 1 B कैपिटल ब्रोमो, ब्रोमो ब्रोमो अल्केन। तो कौन सा अल्केन हो गया? 3 कार्बन का अल्केन, 1 2 3 इज प्रोपेन। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल इन दिस। थर्ड एग्जाम्पल में आई विल मेक अनदर स्ट्रक्चर, बराबर देखना, CH3 CH3 CH2 आयोडो। नाउ हियर इन दिस केस इफ यू सी प्रॉपरली 4 कार्बन का कंपाउंड है, एंड 4 कार्बन में अल्काइल ग्रुप्स कौन से होते हैं? N ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। आपको देखो बराबर से, द चेन स्टार्ट्स फ्रॉम योर, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। इसके सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल है, और देखो अपीयरेंस कैसा आ रहा है? CH3 CH CH3। मैंने आपको बताया था CH3 CH CH3 का अपीयरेंस आइसो होता है। 4 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल नहीं, 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, और
यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. फर्स्ट पे क्या है, आयोडो, स्टार्ट्स विथ आई. सेकेंड पे क्या है, मिथाइल, स्टार्ट्स विथ एम. तो अल्फाबेटिकली आई पहला आ जाएगा. सो IUPAC, विद रिस्पेक्ट टू IUPAC इट इज नेम्ड एज 1 आयोडो 2 मिथाइल, और 2 मिथाइल के बाद 3 कार्बन का चेन. तो 3 कार्बन का चेन क्या होता है, कौन सा अल्केन होता है, प्रोपेन. तो इट इज 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो सी प्रॉपरली, हैलो अल्केन्स के पास कोई अपना डिफरेंट नेम नहीं होता, एंड में आपको अल्केन ही लिखना पड़ता है इसके अंदर. मतलब योर द पेरेंट बिकम्स द अल्केन, हैलोजन एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, और वो भी लोवेस्ट लोकेन रूल एंड लोवेस्ट सम रूल अप्लाई करना पड़ता है आपको. अब मैं आपको फोर्थ एग्जाम्पल देता हूं. फोर्थ एग्जाम्पल देखो बराबर से. सपोज मैंने एक रिंग लिया है C6H5 CH2Cl. नाउ सी प्रॉपरली, कॉमन नेम के हिसाब से ये पूरा ग्रुप जो है ये बेंजाइल ग्रुप है. आपको याद होगा C6H5 CH2 इज बेंजाइल. तो देखो कॉमन नेम के हिसाब से इट इज नेम्ड एज बेंजाइल क्लोराइड हो गया. अब मुझे इसका IUPAC लिखना है. तो IUPAC में हैलोजन, सी प्रॉपरली, हैलोजन किसको अटैच्ड है, हैलोजन रिंग को अटैच नहीं है, हैलोजन CH2 को अटैच है. तो जिसको अटैच होगा मतलब इट इज नॉट अटैच टू द रिंग, इट इज अटैच टू द ओपन चेन. एक है एरोमेटिक, एक है एलिफैटिक. तो एलिफैटिक को अटैच है, तो ये आपका पेरेंट हो गया. पेरेंट क्लोरीन, मतलब ये एक कार्बन आपका पेरेंट बन गया, दैट इज मीथेन, जिसको हैलोजन अटैच है. तो ये मीथेन आपका मेन पेरेंट है, क्योंकि एक कार्बन का अल्केन इज मीथेन. नाउ यू हैव क्लोरो, स्टार्ट्स विथ C, एंड यू हैव C6H5. C6H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप. तो P, तो C पहले आ जाएगा. तो इस कंपाउंड को मैं बोलूंगा क्लोरो फिनाइल मीथेन. देखो आपका पेरेंट अल्केन ही आता है एंड में, हर एक जगह पे आपका पेरेंट जो है दैट विल बी एन अल्केन इन दी एंड. सो यू हैव टू डिसाइड कि पेरेंट कौन है. तो पेरेंट में रिंग को बेंजीन नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता, उसका रीजन ये है बिकॉज रिंग पे हैलोजन अटैच नहीं है. अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिफ्थ एग्जाम्पल. सपोज मैंने रिंग लिया है, अब रिंग के एक पोजीशन पे मैंने क्लोरीन को अटैच कर दिया इधर पे, ठीक है, अटैच कर दिया इधर पे मैंने क्लोरीन, और यहाँ पर मैंने एक CH3 डाल दिया. तो अब ये जो क्लोरीन है ये CH3 एलिफैटिक को अटैच नहीं, एरोमेटिक को अटैच है. सो दैट इज वाई इफ इट इज अटैच टू एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन को अटैच है, तो ये आपका पेरेंट बन गया. बेंजीन बिकम्स द पेरेंट. Why? Because halogen is attached to the parent. Here see halogen is attached to aliphatic. Here the halogen is attached to aromatic. अब एक क्लोरीन है और एक मिथाइल है. क्लोरीन इसके फर्स्ट पोजीशन पे, मिथाइल सेकंड पोजीशन पे. तो मैं लिख सकता हूँ 2, अल्फाबेटिकली C कम फर्स्ट. सो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन. ओके, 2 मिथाइल बेंजीन. नाउ नंबर 6, दोनों का डिफरेंस आप समझ लेना. कहाँ पर हैलोजन अटैच है, हमेशा देखने का फंक्शनल ग्रुप का अटैच है. नंबर 6 मैंने मॉलिक्यूल ऐसा लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl. बराबर देखो, दिस इज ऑल्सो अल्काइल ग्रुप. इसका नाम आपको याद होगा अलाइल. 3 कार्बन डबल बॉन्ड इज अलाइल, 2 कार्बन डबल बॉन्ड इज वीनाइल, 4 कार्बन और सेंटर में डबल बॉन्ड 2 एंड 3rd कार्बन पे, उसको बोलते हैं क्रोटाइल. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अलाइल ग्रुप. तो ये पूरा अलाइल, और ये पोजीशन अलाइलिक पोजीशन होती है, मैंने आपको बताया था आपके अल्काइल ग्रुप्स में. तो इफ आई राइट डाउन द कॉमन नेम, दिस विल बी कॉल्ड एज अलाइल, और इस अलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, क्लोराइड. ठीक है. नाउ IUPAC. नाउ इन केस ऑफ IUPAC you have to select the longest carbon chain. तो ये आपका longest carbon chain है, consist of double bond. double bond is a main functional group. See, it is a part of this main functional group. और मैंने नीचे क्या लिखा है, functional groups like halogen, chloro, bromo, iodo, fluoro, nitroso, NO group, nitro group, NO2, alkyl group R, ONO यानी नाइट्रीटो, azido N3, alkoxy OR group, phenyl, epoxy, ये हमेशा क्या एक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट.
तो अब यहाँ पर दो चीज़ आ गई IUPAC में कि सर मैं इसको ऐसा नंबर करूँ 1 2 3, या तो लेफ्ट से 1 2 3। अगर मैं राइट से करता हूँ तो हैलोजन गैस द लीस्ट नंबर एंड डबल बॉन्ड गेट सेकेंड। अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ तो डबल बॉन्ड गेट फर्स्ट पोजीशन लीस्ट नंबर एंड हैलोजन गेट थर्ड। तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ से करना चाहिए। तो प्रायोरिटी रूल सेज कि C डबल बॉन्ड C हैज़ अ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू हैलोजन। हैलोजन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करता है इन कंपेयर टू दिस फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये आपका हायर प्रायोरिटी है, तो हायर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो हायर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पर अल्कीन आपका हायर प्रायोरिटी है तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर करना चाहिए। मतलब लेफ्ट टू राइट करेक्ट है, राइट टू लेफ्ट इनकरेक्ट है। मतलब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रॉप 1 ईन, अल्कीन की तरह। देखो आपने अल्कीन पेरेंट चूज किया है क्योंकि अल्कीन का प्रायोरिटी हैलोजन से ज़्यादा है। हैलोजन और अल्कीन साथ में होगा तो आप हैलो अल्कीन नहीं लिख सकते। मतलब इस कंपाउंड को आप 1 क्लोरो नहीं लिख सकते। आपको 1 किसको देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को, बिकॉज इट इज हैविंग द लीस्ट नंबर बिकॉज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी। जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसको नंबर सबसे लीस्ट। ओके, सो दिस वॉज द एग्जाम्पल्स वी नीड टू रिमेंबर। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स में अपने देखना मैंने कैसे इसमें डिफरेंट कवर किया। अब एक और एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका सिर्फ हम लोग IUPAC लिखेंगे। विल जस्ट राइट डाउन द IUPAC ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आफ्टर दिस। इसके पहले आप कॉपी कर लेना पॉज करके। सपोज द एग्जाम्पल ओनली फॉर IUPAC। मैंने एग्जाम्पल लिया है, सपोज 7th वन आई एम राइटिंग योर CH3C CH3H CHBr CH2CH3। नाउ फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कहाँ से नंबर करोगे। अब ब्रोमीन और मिथाइल, अब अगर कोई बोलेगा सर इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमीन को मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोमीन और मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है। पेरेंट कौन होता है, हेलो अल्केन्स में अल्केन्स होता है, हेलो अरीन्स में अरीन्स होता है। तो अल्केन्स और अरीन्स आपके पेरेंट्स है, हेलो तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको दो चीज़ें नंबर करने के लिए, लेफ्ट से किया तो 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप मिथाइल 2 पे आ रहा है और ब्रोमीन 3 पे आ रहा है, तो 2 + 3 5 होता है। अगर राइट से किया तो 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 3 + 4, 4 + 3 कितना हो गया 7। बट लोएस्ट सम रूल कहाँ हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आपका करेक्ट होगा, राइट टू लेफ्ट विल बी व्हाट, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर रहे हो, जिसका सम सबसे कम होगा पोजीशन का वहाँ से नंबर करो। नॉट 2 पे मिथाइल 3 पे ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी कम फर्स्ट, सो इट विल बी नेम्ड एज 3 फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, ब्रोमो 2 मिथाइल। अब 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन। ओके, कॉपी इट डाउन, आई रब दिस आउट। पॉज करके कॉपी कर लेने का। Okay, let's talk about the next molecule. Next molecule is dihaloalkane, dihalogen derivative. I am interested in its common name. IUPAC बहुत सिंपल है, कॉमन नेम इसका इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में आइडेंटिफाई करने के लिए। डाइहैलोअल्केन मतलब हैविंग 2 हैलोजेंस। तो ये 2 टाइप के होते हैं, याद रखने का। एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड और एक होता है विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल, विसिनल। जेमिनल मीन्स 2 हैलोजन ऑन द सेम कार्बन एटम। ठीक है, सेम कार्बन पे 2 हैलोजन हो गए तो डाइहैलाइड, उसको वो जेमिनल बोलते हैं। विसिनल मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, नेबरिंग कार्बन एटम, 1 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 4 पोजीशन, तो वो विसिनल होता है। कोई बोलेगा सर विसिनल ऐसा हो सकता है क्या
देखो इसमें भी दो हैलोजन है, मिला नहीं, ये सिर्फ डाई हैलाइड है, ना ये जेमिनल है ना ये विसिनल है। विसिनल के लिए दो हैलोजन नेबरिंग होना चाहिए और जेमिनल के लिए दो हैलोजन ऑन द सेम कार्बन एटम होना चाहिए। ओके, सो नेबरिंग कार्बन एटम पे होगा, याद रखने का, दैट इज कॉल्ड एज विसिनल। सो मैं लिख देता हूँ 1-2 कॉम्बिनेशन, 2-3 कॉम्बिनेशन, नेबरिंग कार्बन एटम, तो दैट विल बी विसिनल डाइहैलाइड। और सेम कार्बन एटम में दो हैलोजन हो गए जेमिनल। याद रखो जेमिनल का कॉमन नेम होता है अल्काइलिडीन डाइहैलाइड और विसिनल का कॉमन नेम होता है अल्काइलीन डाइहैलाइड। देखो अल्काइलीन, अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन आएगा तो जेमिनल, अल्काइलीन आया तो विसिनल। अच्छा, IUPAC दोनों का सेम है, नंबर कॉमन नंबर डाई हैलो अल्केन, मतलब आपको लिखना है पोजीशन ऑफ द हैलोजन जो लीस्ट होना चाहिए। तो दिस नंबर इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ हैलोजन, सो दीज आर नथिंग बट लीस्ट पोजीशन ऑफ हैलोजन्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH2, सॉरी सिंपल लेते CH3 CHCl Cl। नाउ योर बोथ द क्लोरीन एटम इज प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। अच्छा, नाउ इसका कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम क्या है, अल्काइलिडीन। डिफिकल्ट जरा भी नहीं है, सिर्फ अल्क पे फोकस करो। तो अल्क दो कार्बन का अल्क क्या होता है, ईथ, तो इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अच्छा, इसका IUPAC लिखना है मुझे, तो 1-2 फर्स्ट कार्बन पे ही दोनों हैलोजन है। सर आपने यहाँ नंबर क्यों किया, मैंने बोला ये क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे भी हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, तो सिर्फ डाई हैलो लिखोगे, डाई हैलो यानी डाई क्लोरो इथेन लिखोगे। नेम इज व्हाट, डाई हैलो अल्केन। सो डाई मतलब दो, हैलो मतलब दो, क्लोरीन मतलब ये हो गया डाई क्लोरो पेरेंट अल्केन, दो कार्बन का अल्केन, दो कार्बन का अल्केन क्या है, इथेन। बट इफ आई से डाइक्लोरोइथेन, तो यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, सर इथेन में दो कार्बन होते हैं, तो दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे है या दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे है, मतलब 1-1 पोजीशन पे या 1-2 पोजीशन पे। सो आई नीड टू मेंशन द पोजीशन। याद रखो जहाँ पोजीशन ज़रूरत है वहाँ लिखना ही चाहिए। सो ये फर्स्ट पोजीशन पे दोनों आ रहे हैं, तो 1,1, सेकेंड पे भी आ सकते थे, 1,2 हो सकता था, तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यू हैव टू राइट डाउन द पोजीशन वेर इट इज़ नेसेसरी। तो इट इज़ 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब सपोज मैंने इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है इस तरीके से, बराबर देखना, CH2Cl CH2Cl। अब ये एग्जाम्पल में दोनों क्लोरीन नेबरिंग कार्बन पे है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। इसका कॉमन नेम क्या है, अल्क, दो कार्बन का अल्क, ईथ। सो इथाइलीन मतलब दिस विल बी नेम्ड एज, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलीन डाइक्लोराइड। ओके, और IUPAC लिखना है तो 1-2, देखो अभी दोनों डिफरेंट कार्बन पे, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। बराबर देखो मैंने यहाँ पर 1,1 डाइक्लोरो, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे, यहाँ लिखा है 1,2 डाइक्लोरो। वाई, बिकॉज दे प्रेजेंट टू डिफरेंट पोजीशन। ओके, तो एक वन मोर एग्जाम्पल इन दिस, एग्जाम्पल देते फिर ये डाई हैलो अल्केन के बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल सपोज मैंने ऐसा लिखा है CH3 C, ओके, यहाँ पर एक डाल देता हूँ मैं CH3 Br। अब दो हैलोजन है, अगेन टू हैलोजन आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, मतलब ये क्या हो गया, इट्स एग्जाम्पल ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, जेमिनल डाइहैलाइड में कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम इज अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। तो अल्क, अब तीन कार्बन का अल्क क्या है, प्रॉप है, लेकिन प्रॉप दो टाइप के होते हैं, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मतलब अटैचमेंट सेकेंडरी कार्बन पे होगा और एन प्रोपाइल मतलब अटैचमेंट फर्स्ट कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन पे तो नहीं दिखता, कहीं से भी नंबर करो सेकेंडरी कार्बन पे ही अटैच है, so that is why it is called as
प्रोपाइलिडीन क्योंकि सेम कार्बन पे है, और आइसोप्रोपाइल बिकॉज सेकेंडरी पे अटैचमेंट है, तो आइसोप्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड। और IUPAC, हमेशा IUPAC सिंपल ही होता है, इसके लिए सिस्टम निकाला गया है। सेकेंड पे 2 ब्रोमीन है तो 2,2 डाइब्रोमो, 3 कार्बन का अल्केन इज प्रोपेन। डाई हैलो होने दो या मोनो हैलो होने दो, पेरेंट तो हमेशा अल्केन ही बनेगा हैलोजन में। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन, नोट इट डाउन, पॉज करके लिख लो ये। Let's start with the third molecule. The third molecule in discussion is alcohols. They are represented by the aliphatic alcohols are represented by general formula ROH. Okay, या CnH2n plus 2O या CnH2n plus 1OH, monohydric alcohols. Now alcohols have a common name of alkyl alcohol. अच्छा, IUPAC, सो अल्केन, काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितना भी कार्बन काउंट करोगे वो आपका अल्केन होगा। अल्केन का ई आप रिप्लेस करोगे बाय द वर्ड ऑल, और अगर ऑल का पोजीशन ज़रूरी है तो बताना, अगर ऑल का पोजीशन चेंज होगा तो बताना ज़रूरी है, तो दे आर नेम्ड एज अल्केन नंबर ऑल व्हेन नंबर इज द लीस्ट position of OH group, least position of OH group. Okay, now if there are 2 OH 3 OH then they will be called as diols and triols। मतलब आपको ये याद रखने का कि अगर 2 OH ग्रुप है तो इसका नाम होगा अल्केन। अब ई रखना पड़ेगा क्योंकि वॉवल बिना नेम नहीं होता, तो अल्केन नंबर कॉमन नंबर डायऑल। अगर 3 OH ग्रुप है तो अल्केन नंबर कॉमन नंबर ट्राई ऑल। ठीक है, और ये आप क्यों सस्टेन कर रहे हो, वॉवल क्यों नहीं निकाल लो, बिकॉज मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के पास नंबर होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 नंबर विद द फंक्शनल ग्रुप। इफ there is one vowel which should be before or after the number in functional group, एक वॉवल होना ही चाहिए। नॉर्मली जब आप अल्केन नंबर ऑल लिखते हो तो नंबर के साथ में ऑल का ओ आ जाता है, मतलब वॉवल आ जाता है जब एक ही OH ग्रुप होता है तो। लेकिन 2 OH ग्रुप होते हैं तो नंबर के साथ में D या T आता है, D और T वॉवल नहीं है। इसके लिए आपको अल्केन का E निकालना नहीं चाहिए, सस्टेन करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर के साथ में एक वॉवल होना चाहिए। एंड दिस रूल इज विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। ओके गाइस, जैसे हम लोग ने डाइन्स और ट्राइन्स में देखा था जिसमें हम लोग ने ए छोड़ दिया था, यहाँ पर ई नहीं निकालने का, ई छोड़ देने का। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2OH। नाउ इसका कॉमन नेम लिखना है तो इथाइल ग्रुप, अल्काइल अल्कोहल, 2 कार्बन का alkyl is ethyl, so this will be called as ethyl alcohol। ठीक है, अब इसका IUPAC लिखना है तो in case of IUPAC of this compound, this is the longest carbon chain, it should get least position, but बराबर देखो तो यहाँ पर OH फर्स्ट पोजीशन पे। अगर OH को आप ये साइड लिखते हो तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है CH2 CH3, तभी भी ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा क्योंकि तब आप लेफ्ट से नंबर करोगे, मतलब 2 कार्बन में नंबरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इन बोथ द केसेस एक्चुअली में दोनों आइडेंटिकल है, इसको फ्लिप करोगे तो यही बन जाएगा 180 पे। तो दोनों केसेस मैंने बनाया उसमें OH फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो नंबर करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। दैट इज़ वाई इस कंपाउंड में 2 कार्बन का जो अल्केन होता है वो होता है ईथेन। इसका ई आप रिप्लेस करोगे किससे, ऑल, इथेनॉल। इजी है, ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल लिया मैंने CH3 CHOH CH3। ना कॉमन नेम बराबर देखोगे तो 3 कार्बन का अल्काइल है, 3 कार्बन का अल्काइल में 2 होते हैं, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल कब होगा, जब OH
टर्मिनल से अटैच होता है। और आइसोप्रोपाइल कब होगा? जब OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। सो नाउ दिस एल्कोहल विल बी कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये N प्रोपाइल कब होता है? जब OH या टर्मिनल पे अटैच होता है। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, आपको याद होगा CH3 CH3 इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अच्छा, IUPAC तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, 3 कार्बन का है। अब लेफ्ट से नंबर किए तो भी OH सेकेंड पोजीशन पे, राइट से किया तो भी OH सेकेंड पोजीशन पे। अब क्वेश्चन ये है क्या सीन 3 कार्बन में हम नंबर करेंगे? हाँ करो, क्योंकि OH अगर CH3 पे होता, CH2 पे यहाँ पर होता, इस कार्बन पे होता, तो मैं इसको फर्स्ट पोजीशन दे देता। तो मतलब OH इन 3 कार्बन चेन कैन हैव फर्स्ट पोजीशन, कैन हैव सेकेंड पोजीशन, दोनों में से कोई भी पोजीशन ले सकता है। सो दैट इज वाई यू नीड टू मेंशन द पोजीशन। और जब पोजीशन मेंशन करोगे तो नेम कुछ इस तरह होना चाहिए, अल्केन नंबर ऑल। सो 3 कार्बन का चेन इज प्रोपेन, प्रोपेन का ई निकाल दोगे वॉवल, उसकी जगह पे ऑल डाल दोगे, प्रोपेनॉल। बट ऑल कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? सेकेंड पोजीशन। सो प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा इधर पे, प्रोपेन टू ऑल हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल इन दिस। सपोज मैंने थर्ड एग्जांपल ऐसा कुछ लिया है जो चेन गोज लाइक दिस। यहाँ एक डबल बॉन्ड ले रहा हूँ और यहाँ पर आपका ग्रुप अटैच होगा OH ग्रुप। ये इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब मुझे सिर्फ इसका IUPAC चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दी कॉमन नेम। कॉमन नेम आप लोग समझ गए कैसा नाम करना है, अल्काइल अल्कोहल करना। आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द IUPAC ऑफ द कंपाउंड। नाउ इन दिस देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। तो OH फंक्शनल ग्रुप है और डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नाउ हायर प्रायोरिटी किसका है? OH का, तो पूरा नाम उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट इट इज़ नेम्ड एज व्हाट? अल्केन नंबर ऑल। लेकिन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन होगा। तो अब एक काम करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी ऑफ 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। नंबर कहाँ से करेंगे? जहाँ पर OH को लीस्ट मिले। क्यों? क्योंकि उसका प्रायोरिटी हाई है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नाउ टोटल कार्बन का पेरेंट इज 5, तो 5 का रूट वर्ड हो गया पेंट। अब ये N तो नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ये पेंटीन है, क्योंकि ये अल्कीन है, एंटीन। बट इन का डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सेकेंड पोजीशन पे। सो पेन टू इन। फिर आप बोलोगे सर एक्चुअली में ये अल्कोहल है, तो इन का वॉवल E किससे रिप्लेस करोगे? ऑल से। ऑल कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट। तो इन 1 ऑल। सो पेन टू इन 1 ऑल विल बी दी IUPAC ऑफ द कंपाउंड। जहाँ पर हम लोग ने दोनों को कंसिडर किया। अब हमेशा याद रखना कि अल्कोहल अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स सफिक्स विल बी ऑल। और अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया then it is called as, then OH group will be called as hydroxy group, okay। तो अभी तक तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें तो ये पेरेंट ही बना है, तो आपने सिर्फ सफिक्स ही यूज़ किया है। अभी तक के मैं हाइड्रोक्सी एग्जाम्पल पे गया ही नहीं हूँ और वो जाने की अब ज़रूरत भी नहीं है। विल डू इट इन दी एंड। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि OH एक्ट सफिक्स एल्कोहल व्हेन इट इज एक्ट एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप ईयर, और हाइड्रोक्सी हुआ। तो अब नाउ व्हाट इफ देर आर 2 OH ग्रुप? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा CH2 OH OH। ये विसिनल डायॉल है। विसिनल मतलब दोनों OH अजेसन पे। इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल्स या इथिलीन ग्लाइकॉल। इनको ग्लाइकॉल्स बोलते हैं, 2 OH वाले को, इथिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है तो व्हाट इज IUPAC? सो IUPAC ऑफ 2 OH ग्रुप विल बी, अल्केन का E रखना पड़ेगा क्योंकि डायॉल का D लिखने वाले हो तो नंबर के साथ कोई वॉवेल नहीं आएगा, इसके लिए E सस्टेन करना पड़ेगा। तो अल्केन, तो 2 कार्बन का अल्केन इथेन, और दोनों देखो 1-2 पोजीशन पे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इथेन -1,2 डायॉल।
ओके मैंने देखो ई छोड़ दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप का जो भी पोजीशन होता है उसके साथ में एक वॉवल होना चाहिए। सिर्फ कहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप, एंड में। स्टार्ट में कोई ये रूल फॉलो नहीं करता, एंड में होना चाहिए। नंबर के साथ एक वॉवल, दो नहीं हो सकते और बिना वॉवल के भी नहीं हो सकता। मतलब आप इसको अल्केन अल्केन नंबर ऑल ये नहीं लिख सकते क्योंकि दो वॉवल आ रहे हैं। यू कैन नॉट राइट इट आउट, देयर शुड बी ओनली वन वॉवल, दैट्स इट, होना ही चाहिए। और विदाउट वॉवल भी नहीं चलेगा। अच्छा अभी सपोज मैंने इसका फिफ्थ एग्जाम्पल लिया तो जिसमें ट्रायोल ले लिया था। फॉर एग्जाम्पल CH2OH, CHOH, CH2OH, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन भी बोलते हैं। लेकिन इसका IUPAC क्या है? अब इट इज़ 1 2 3, सो प्रोपेन का ई डालना पड़ेगा, हाइफेन 1 2 3 हाइफेन ट्रायोल। आप साथ में लिखना, स्पेस कम है इसके लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ा, ट्रायोल 3OH ग्रुप। ओके नाउ वन मोर एग्जाम्पल, आई टेक, पॉज करके ज़रा इसको कॉपी कर लो पहले। हाँ मैं एक और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आफ्टर द फिफ्थ एग्जाम्पल। सपोज ये एग्जाम्पल लिया, फिफ्थ वन, C6H5 CH2OH, मैंने आपको हैलो अल्केन में भी बताया था। नाउ दिस कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम इज अल्काइल अल्कोहल, सो इट इज C6H5 CH2 is benzyl, therefore it will be called as benzyl alcohol। बट गाइज IUPAC में पेरेंट आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जिससे OH अटैच है, तो ये आपका पेरेंट हो गया। एक कार्बन का पेरेंट इज मीथेन, तो ये क्या बन जाएगा? अब आपका ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये रहेगा फिनाइल। आपको याद होगा मैंने इससे पहले RX का एग्जाम्पल लिया था, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट का पहले हम लोग नाम लिखते हैं फिनाइल। अब एक कार्बन विद OH विल बी कॉल्ड एज व्हाट? मीथेनॉल। और पोजीशन भी लिखने का जरूरत नहीं बिकॉज एक ही कार्बन है, फर्स्ट पे ही रहेगा ना, मीथेनॉल। तो फिनाइल मीथेनॉल। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल, इफ दिस मॉलिक्यूल राइट डाउन सम मोर मॉलिक्यूल हियर, मॉलिक्यूल नंबर 6, अगर ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, OH ग्रुप, ओके, और यहां पर मैंने एक CH3 लिखा, तो गाइस OH इज अटैच टू द रिंग। तो OH जब फिनाइल रिंग से अटैच होता है तो आपको याद होगा ये पूरा बन जाता है फिनॉल, मतलब ये अल्कोहल नहीं रहा। नाउ दिस बिकम्स अ फिनॉल ईयर, तो इफ बिकम्स अ फिनॉल ईयर तो इसका जो IUPAC मुझे लिखना है, अगर मुझे कॉमन नेम पहले लिखना है तो आपको याद होगा ये फिनॉल का फर्स्ट पोजीशन हो गया जिसपे OH अटैच है, ये सेकेंड पोजीशन हो गया, सेकेंड पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं हम लोग, सो इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो मीथाइल फिनॉल। या तो IUPAC विल बी 2 मीथाइल फिनॉल। गाइज अब ये फिनॉल हो गया, इट इज़ नो मोर एन अल्कोहल नाउ। अल्कोहल कब होगा? जब वो एलिफैटिक से अटैच होगा। लेकिन अभी सपोज मैंने सेवेंथ एग्जाम्पल में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाया है और उस पर OH अटैच किया है, तो दिस इज नॉट अ फिनॉल, ये साइक्लो अल्केन है। मतलब अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो इट इज साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, या IUPAC में साइक्लोहेक्सेनॉल भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, या हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, यू कैन राइट डाउन हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये फिनॉल है। अगर C6H5 से अटैच होगा फिनॉल, और फिनॉल में भी 2 ग्रुप 3 ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन OH, C6H5OH, इसका नेम होता है द कमर्शियल नेम, इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल नेम इज रेसोर्सिनॉल। इसको कॉमन नेम में भी लिख सकते हैं, कमर्शियल नेम में भी लिख सकते हैं, दिस इज रेसोर्सिनॉल। तो रेसोर्सिनॉल का अगर मुझे IUPAC लिखना है तो 2OH ग्रुप 1 2 3 इज प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। तो अब आपका पेरेंट बेंजीन होगा, 2 OH ग्रुप है,
तो 2 OH के लिए अल्केन, नंबर डायोल, तो अल्केन की जगह पे अरीन, तो अरीन कौन सा है, बेंजीन, सो इट बिकम्स बेंजीन 1,3 डायोल. ओके, बेंजीन 1,3 डायोल. क्लियर हुआ. याद रखना दैट OH is attached to the ring, so it becomes the phenolic group. That is no more an alcoholic group, that becomes a phenolic group. So phenolic group के हिसाब से you have to name it as what, a phenol. catechol जो हो गया, रेसोसिनॉल जो हो गया. ठीक है. तो I'll share some more examples with you in this case. We'll find some more examples and discuss with you. For example, 2 OH ग्रुप अगर 8th पोजीशन का लिख रहा हूँ, OH अटैच टू द रिंग अटैच टू OH, ये भी फिनॉल है. दोनों OH देखो पैरा पोजीशन पे, तो इसको कॉमन नेम इज कॉल्ड एज क्विनॉल. लेकिन अगर इसका क्विनॉल इज द कॉमन नेम. अगर IUPAC लिखना है तो देखो 1 2 3 4 पोजीशन पे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो इट विल बी कॉल्ड एज बेंजीन 1,4 डायोल. ठीक है, बेंजीन 1,4 डायोल हो गया रिस्पेक्ट टू दैट कैटेगोरी. ओके गाइस, सो फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, चेन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. कॉपी इट डाउन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. Let's move on to the next molecule. The next molecule of discussion is ethers. Ethers. Now ethers have a general formula ROR dash. Both the R can be same, both the alkyl groups can be different. Okay. Now when ether act as a substituent, जब OR group को आप substituent बनाते हो चेन में ब्रांच की तरह, देन इट विल बी नेम्ड एज एल्कोऑक्सी. अल्क याद रखने का, CH3 हुआ मिथॉक्सी, मतलब इफ आई राइट डाउन OCH3 इट विल बी कॉल्ड एज मिथोऑक्सी. C2H5 विल बी कॉल्ड एज ईथोऑक्सी. ठीक है, एग्जाम्पल्स में मैंने बताया. C3H7 प्रोपोऑक्सी, आइसोप्रोपोऑक्सी, ब्यूटोऑक्सी, आइसोब्यूटोऑक्सी, डिपेंड कर रहा है कौन सा ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है. जब OR ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा तो ये नाम होगा, याद रखने का. नाउ लेट्स कम बैक टू ईथर में ROR. कॉमन नेम, कॉमन नेम कैसा होगा? कॉमन नेम 2 टाइप के हो सकते हैं. एक, अगर दोनों R सेम निकले देन इट इज कॉल्ड एज अल्काइल ईथर. बट ये दोनों अल्काइल यू हैव टू राइट डाउन विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये याद रखने का. ये होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए. बट व्हाट इफ 2 alkyl groups are different? If both the alkyl groups are, I'm extremely sorry, this is applicable to when 2 different alkyl groups, दोनों सेम नहीं है तो दोनों के अलग अलग नाम लिखो. ओके, when 2 alkyl groups are same, याद रखना ये डिफरेंट के लिए मैंने गलती से लिख दिया था. when 2 alkyl groups are same then they are named as dialkyl ether. तो this is the common name, इस टाइप में लिखने का कॉमन नेम, अल्काइल डायल्काइल ईथर. IUPAC क्या होगा? IUPAC में फर्स्ट केस, अगर दोनों अल्काइल सेम है, ठीक है, एक ही दिया है, तो एक को एल्कोऑक्सी बना दो और एक को अल्केन बना दो. मतलब मैं इसमें आपको ऐसा बना सकता हूं कि अगर दोनों सेम हुए, इफ बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, ठीक है, सो वन बिकम एल्कोऑक्सी एंड वन बिकम अल्केन. तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये ले सकता हूँ कि इसके अंदर दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम है, तो किसी एक को अल्काइल बना दो तो दिस बिकम्स एल्कोऑक्सी एंड दिस पार्ट विल बिकम, मतलब दिस पार्ट विल बिकम एल्कोऑक्सी एंड दिस पार्ट विल बिकम अल्केन. ठीक है, लेकिन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है,
ROR-। इस केस में दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो एक स्मॉलर होगा और एक हायर होगा। तो सपोज जो स्मॉलर अल्काइल होगा वो एल्कोऑक्सी बनेगा, ऑक्सीजन के साथ में इट बिकम्स एल्कोऑक्सी। और जो लार्जर अल्काइल होगा, हेवियर अल्काइल, वो बनेगा अल्केन, दैट बिकम्स एन अल्केन। And plus you can number that alkoxy. Now alkoxy become your substituent and parent becomes alkane. तो देखो ईथर में भी पेरेंट कौन होता है? अल्केन। अल्काइल हैलाइड्स में भी पेरेंट कौन होता है? अल्केन। ये याद रखने का, ये अल्कोऑक्सी एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो स्मॉलर वाले को सब्स्टिट्यूएंट बनाओ, हायर वाले को अल्केन, बिकॉज वो पेरेंट रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आई हैव वेरी लिटिल प्लेस टू सॉल्व, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स इन दिस। ओके, तो वन बाय वन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इज व्हेन वी राइट डाउन CH3OCH3। देख लो, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप है, तो मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है। तो दोनों मिथाइल सेम है, दे आर नेम्ड एज डाई अल्काइल, तो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई। दोनों अल्काइल का नाम क्या है? मिथाइल। सो डाई मिथाइल ईथर। ओके, now if I want to write down IUPAC, तो both the alkyl are same, so one become alkoxy। एक अल्काइल को ऑक्सीजन के साथ में डालो तो एक बनेगा आपका एल्कोऑक्सी। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं मीथोऑक्सी, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल। नाउ दिस रिमेनिंग पार्ट बिकम्स योर अल्केन, तो मीथोऑक्सी अल्केन। तो अल्केन एक कार्बन का है, तो दिस बिकम्स मीथेन। तो डाई मिथाइल ईथर का यूपीएसी नेम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। बहुत इजी है। अब थोड़ा सा एक हेवियर ग्रुप रहते हैं। सपोज इफ आई टेक CH3O CH2CH3। ओके, नाउ हियर यू हैव अ मिथाइल ग्रुप, हियर यू हैव अ इथाइल ग्रुप। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा? सर दोनों अल्काइल डिफरेंट है, तो एक मिथाइल है M, एक इथाइल है E, तो अल्फाबेटिकली E कम फर्स्ट, तो इट इज़ नेम्ड एज इथाइल। ये वाला यूज़ करेंगे इथाइल मिथाइल, सो इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, ना IUPAC लिखना है, तो IUPAC के हिसाब से दोनों डिफरेंट है, तो स्मॉलर बिकम्स एल्कोऑक्सी एंड लार्जर बिकम्स अल्केन। तो ये लार्जर हेवियर अल्काइल है, तो ये अल्केन बनेगा। ये स्मॉलर है, तो ये एल्कोऑक्सी बनेगा। ये एल्कोऑक्सी को हम लोग लिख सकते हैं IUPAC में, दिस एल्कोऑक्सी इज मिथोऑक्सी। अब अल्केन दो कार्बन का है, तो अल्केन हो गया ईथेन। तो CH3O(C2H5) इज कॉल्ड एज मिथोऑक्सी ईथेन। देखो यहाँ पर मिथोऑक्सी ग्रुप इसके फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। अगर मिथॉक्सी को यहाँ पर अटैच करोगे तो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। इसके लिए मैंने मिथॉक्सी का पोजीशन मेंशन नहीं किया। ओके, हैव नॉट मेंशन द पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी। बट व्हेन आई टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, CH3OCH3CH3। अब मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है, तो एक जगह पे कॉमन नेम देखो, एक जगह पे R इज CH3 मिथाइल, एक जगह पे R इज 3 कार्बन एटम इथाइल। नाउ फॉर दिस कॉमन नेम, वन इज मिथाइल एंड 3 कार्बन का प्रोपाइल, तो मिथाइल का M। अब प्रोपाइल में दो होते, N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ना सी प्रॉपरली ये O किससे अटैच है? CH से अटैच है, टर्मिनल CH3 से नहीं। मतलब ये देखो बराबर आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप दे रहा है, तो आइसोप्रोपाइल का हमेशा I देखते हैं। अल्फाबेटिकली I कम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू M, तो पहले I लिखेंगे, तो इट विल बी आइसोप्रोपाइल, देन M स्टैंड्स फॉर व्हाट? मिथाइल। बचा क्या? ईथर। और IUPAC लिखना है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई 3 कार्बन की। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इज OR मतलब एल्कोऑक्सी, स्मॉलर वन इज एल्कोऑक्सी। अच्छा, अब नंबर करोगे तो 3 कार्बन का 1 2 3, यहाँ से भी किया तो 1 2 3। यहाँ पर हम पोजीशन मेंशन करेंगे क्योंकि ये जो एल्कोऑक्सी है ये फर्स्ट पे भी हो सकता था, तो 3 कार्बन की चेन में नंबर कर रहा हूँ। अच्छा, ये कौन सा है? मिथॉक्सी, किस पे प्रेजेंट है? सेकेंड पोजीशन पे,
तो नाउ द IUPAC इज 2 मिथोऑक्सी। अब 3 कार्बन का अल्केन बचा तो वो क्या हो गया, प्रोपेन, 2 मिथोऑक्सी प्रोपेन। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल, C6H5OCH3। नाउ कॉमन नेम लिखते हैं पहले। तो कॉमन नेम में एक जगह पे मिथाइल है, अल्काइल अल्काइल लिखना पड़ेगा, 2 डिफरेंट है, और एक जगह पे फिनाइल है। तो फिनाइल इज P, मिथाइल इज M। तो M कम फर्स्ट, तो इसकी जगह पे आ जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, ऑल्सो कॉल्ड एज एनीस। आपको याद होगा मैंने बताया था इसका नाम एरोमेटिक में, इसका दूसरा नाम एनीसोल भी होता है, कमर्शियल नेम। मिथाइल फिनाइल ईथर इज एनीसोल। नाउ फॉर दिस एग्जाम्पल अभी मुझे इसका IUPAC लिखना है। तो IUPAC में हम लोग डिसाइड करेंगे कि पेरेंट कौन है। तो ऑब्वियसली पेरेंट तो यही बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा कार्बन का है। तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के एक पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी। सो इट इज़ कॉल्ड एज मिथोऑक्सी बेंजीन। कोई बोला सर यहाँ पर 1 लिख दो ना, 1 2, तो 1 मिथॉक्सी बेंजीन मिला, क्यों मेंशन कर रहे हो, ज़रूरत नहीं है, कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। तो इट इज़ मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, एनीसोल का एग्जाम्पल, रिमेंबर दैट। फेनिटोल होता है तो OC2H5 होता है उसके अंदर, मतलब OC2H5 होगा तो उसको फेनिटोल बोलते हैं। नाउ ईथर के अंदर, तो दिस आर द एग्जाम्पल्स यू नीड टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू ईथर्स। इसमें आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, थोड़ा सा ब्रांचिंग कर दे। 5th एग्जाम्पल ईथर में CH3CH3O CH2CH3CH3। अच्छा, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। पहले इसका कॉमन नेम लिखते हैं, फिर IUPAC डिसाइड करेंगे बाद में हम लोग, पहले कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम के हिसाब से बराबर देखना ये एग्जाम्पल एक काम करता हूँ मैं, पहले आप पॉज करके ना ये 1 2 3 4 वाले एग्जाम्पल्स लिख लो। आई राइट डाउन समवेयर हियर, यहाँ पर कहीं मुझे पूरा स्पेस चाहिए। ओके, पॉज करके लिख लिया। अब मैं ये रब कर देता हूँ बिकॉज मैं इसका IUPAC कॉमन नेम लिखने वाला हूँ। आई नीड स्पेस फॉर इट। 5 मॉलिक्यूल नंबर 5 बराबर से देखो। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अ आइसोप्रोपाइल ग्रुप स्टार्ट्स विद आइसोप्रोपाइल IP, एंड राइट पे देखोगे तो CH2 CH3 CH3, देखो ये भी आइसो ग्रुप है, वो भी कौन सा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो इट इज आइसोब्यूटाइल IB। तो IB का B पहले आएगा, IP का P, क्योंकि I और I दोनों में कॉमन है, आइसो। तो प्रोपाइल और ब्यूटाइल में से B पहले लिखोगे, मतलब इसका नाम, कॉमन नेम बहुत सिंपल है, आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब IUPAC लिखना है तो IUPAC के लिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में या तो हैवी मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ पर प्रोपाइल 3 कार्बन का है, ब्यूटाइल 4 कार्बन का है, तो दिस विल बी योर पेरेंट। तो दिस बिकम्स 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब बराबर देखो, 2 पे है मिथाइल और 1 पे है आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपाइल ऑक्सीजन आइसोप्रोपॉक्सी। तो मैं इसका नाम लिख सकता हूँ इस केस में, इसका नाम IUPAC नेम विल बी 1 आइसोप्रोपोऑक्सी 2 मिथाइल, पहले मैं एल्कोक्सी का नाम लिखा फिर मिथाइल। अब 3 कार्बन का चेन, मतलब कितना अल्केन हो गया, प्रोपेन। सो 1 आइसोप्रोपॉक्सी। अच्छा, अभी इसका दूसरा IUPAC नेम, द मोर अप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्स नेम, तो आपको याद होगा आइसोप्रोपाइल इज 1 2 1 मिथाइल इथाइल। आपको याद होगा जो मेन चेन से अटैच होता है फर्स्ट कार्बन होता है। क्लियर है? सो 1 2 1 मिथाइल इथॉक्सी भी बोल सकते हैं, देख लो 1 मिथाइल इथॉक्सी। आपको याद होगा आइसोप्रोपाइल का नाम होता है 1 मिथाइल इथाइल, बट ऑक्सीजन आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे हाइफिन ब्रैकेट, बराबर देखना ब्रैकेट। इसको मैंने कॉम्प्लेक्स, ये ब्रांच था तो ब्रांच को कॉम्प्लेक्स की तरह नेम किया, याद है? जो कार्बन मेन चेन से अटैच होता है वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कार्बन फिर लॉन्गेस्ट 2, सो 1 मिथाइल इथॉक्सी ऑल्सो नेम्ड एज 1
मीथाइल इथोऑक्सी। ये पूरा नाम किसका हो गया? आइसोप्रोपॉक्सी का। इतना टेंशन क्या है, सेम ही तो चीज़ है। आइसोप्रोपॉक्सी की जगह पे 1 मीथाइल इथोऑक्सी लिखा है। ये पूरा नाम ही आइसोप्रोपॉक्सी का है और फर्स्ट उसका मेन चेन का पोजीशन है। फिर बाद में तो पूरा नेम वही सेम रहेगा, 2 मीथाइल प्रोपेन। ओके गाइस, so please pause and write it down, ethos.